with you all my screen, and we are going to learn how to use Excel to calculate return and risk practically, right? So we know ki formula use karke how we can get the return, risk, CWI and real rate and everything. But today we are going to understand that how we can use Excel. So that's not a part of your syllabus, but this is extra thing which we should know, very important thing. So first of all, aap kya karoge, you will open one Excel sheet like this, right? I hope you can see my Excel sheet. You will open one Excel sheet and you will give the name of Excel sheet, whatever is the company's name, right? So आपका जो भी कंपनी का नाम है आप वहां पे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? So once you will write the company name, it has to be here, save as करके आप यहाँ पे नाम दे दोगे. फिर you will find the data. Data के लिए आप BSE India साइट करोगे, it is bseindia.com. उस साइट पे आप जाओगे, right? www.bseindia.com, right? And you should be opening this kind of website. I hope you can see the site, this BSE site which is there on the screen, right? And go to the tab में आप कहाँ जाओगे, that side I'll show you. Okay, so this is a BSE website and you go to menu, right? Menu mein there will be markets. So click on the markets. We are not supposed to do anything with the market, but again we will click on the menu and we will click on the markets and then equity. When we will have market, and next to market we will have equity tab, right? So first of all I clicked markets and into market equity. Equity ka jab drop down menu will open, you can find this historical data. So click on the historical data. We are basically getting the historical data from the BSE's website. आप NSE पे भी कर सकते हो, there is no problem in that. And then in the equity again एक pop-up खुलेगा, उसमें से second पैरा में से second historical price and periods, right? So once you will get this, you should able to see this kind of interface. So यहाँ पे you will enter the security name and then you will see whether you want data for daily, monthly or yearly, right? So हम अभी monthly data लेंगे, but before that let me write company's name. What company we wanted to write here? Reliance. Right, Reliance Capital Industry. Let us take Reliance Industry Limited, right? So I have taken Reliance Industries Limited, selected here. Then go to monthly data. Reliance Industries Limited monthly. Suppose I want 10 years data. This is September 2020. So I want it from September 2010, right? So up यहाँ पे month and year you will select September 2000 year, submit, and you should be able to see the data, right? So you will have full 10 years data here, and that must be 10 years 120 results. So यहाँ पे you cannot see the पूरा, तो यहाँ पे नीचे आप जब आओगे तो then you can download the CSV file, download it. So your CSV file will be ready. I hope you can see this, right? Just copy paste the data. Actually we want month and the closing price, right? What we need two things only. So I'm just copying the whole data, opening all the data. I'm copying from, sorry, Control C, to the Excel sheet which we had already downloaded, right? So you should be able to see this data, right? We have the data and we have total 120 around figures, right? We have 121 counts, right? So exactly 10 years data is available to us. That is an open price की ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी हमने ली है? रिलायंस इंडस्ट्री का September 10 में
ओपन प्राइस था 931, उस दिन का ओपनिंग एट द टाइम ऑफ 9 AM जब शेयर मार्केट खुला तो प्राइस वाज 931 और हाई पे क्लोज हुआ था 986। दूसरे दिन 992 पे ओपन हुआ था, 1000 पे क्लोज हुआ था। तीसरे दिन 1100 पे खुला था बट डिक्रीज हुआ था तो 98 पे बंद हुआ था। तीसरे दिन उससे भी कम होके खुला था बट 1000 रुपए से it was closed, right? उस दिन का highest price has been given here and उस दिन का lowest price has been given here, right? And other thing is number of shares, number of trades, which is not at all our, अभी हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, तो I'm just deleting it. मैंने क्या किया, उस सब को delete कर दिया। अभी मैं ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस को भी डिलीट कर रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी नीड ओनली टू थिंग्स, द मंथ एंड क्लोजिंग प्राइस। आर यू फॉलोइंग मी? Are you all following me? Yes, ma'am. Yeah, till the time I just had download the data from BSc, right? So the data has been downloaded and you are all with me, right? You are understanding? Okay, now हमने रिटर्न की फॉर्मूला कैसे सीखी थी? What was our formula for return? What was the formula? हमने सीखा था कि रिटर्न इज इक्वल टू सी यानी आपका जो भी कैश में डिविडेंड है वो कैश इनटू ब्रैकेट सी इनटू ब्रैकेट हमने क्या सीखा था? द बिगिनिंग प्राइस एंडिंग प्राइस। क्या आता है पहले, एंडिंग प्राइस की बिगिनिंग प्राइस? एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस। बिगिनिंग का स्पेलिंग इज रॉन्ग, बिगिनिंग, चलो जाने दो। प्राइस बंद करोगे ब्रैकेट और ऑल डिवाइडेड बाय कौन सा प्राइस? बिगिनिंग प्राइस, ठीक है ना? बिगिनिंग प्राइस। तो दैट वाज अवर फॉर्मूला, ठीक है। व्हेनेवर रिसर्चर यूजेस दिस काइंड ऑफ अ डेटा, दे हैव टू ऑप्शन, दे कैन कंसीडर सी, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए होगा जिसमें यू विल हैव टू डाउनलोड द डेटा फॉर डिविडेंड और यू मे ओमिट इट। ऐसा नहीं है कि ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस 10 साल में देयर इज नो डिविडेंड, और डिविडेंड भी है तब भी अगर आपको परफेक्ट रिटर्न चाहिए तो आप उसमें सी का डेटा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको डिविडेंड का डेटा भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? कंपनी का आप फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे जो मार्च 2020 में हुआ होगा, ठीक है, रिलीज। सो मार्च 2020 का रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा डाउनलोड करोगे और उसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स होंगे, पहले या दूसरे पेज पे ही होगा। सब लिखी झुकी सब खत्म हो जाए ना, उसके बाद जब स्टेटमेंट शुरू होता है कंटेंट के बाद, उसमें द फर्स्ट थिंग विल बी फाइनेंशियल हाइलाइट्स। उसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के डेटा दिए होंगे, उसमें डिविडेंड पर शेयर उसमें दिया होगा, ठीक है। तो यू कैन गेट दैट डेटा फ्रॉम दिस। फॉर हियर फॉर माई इज आई एम नॉट टेकिंग सी, सो मैंने सी को ओमिट कर दिया है। आई एम अज्यूमिंग कि देयर इज नो डिविडेंड पेड, और ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा चीज रहा? एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। अभी इस एक्सेल में उसको कैसे करेंगे? एक्सेल में यू विल कैलकुलेट इक्वल, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। एक्सेल में हाउ वी विल डू इट, इज इक्वल टू ये सेकेंड मंथ है, हाँ, तो इज इक्वल टू टुडेज प्राइस, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा एंडिंग प्राइस हुआ ना आज का, माइनस यस्टरडेज एंडिंग प्राइस, दैट वाज बिगिनिंग। आज का जो एंडिंग है, कल का जो एंडिंग है वो आज का बिगिनिंग होगा, तो दैट इज आई एम टेकिंग एज बिगिनिंग and divided by the beginning price, right, the B2, and you may calculate enter, right? ठीक है, so this is how you can calculate it. That's not possible. Is equal to this minus this, okay, bracket over bracket open, bracket close, divided by beginning price, right? So it is 11%, it is coming 11%. अगर परसेंटेज नहीं होगा आपका तो आपको नंबर में ये दिखेगा, that will be 0.11 something. It will control Z. It is in the number, it is 0.11 and I'm converting them into percentage, 11%. मैंने क्या किया? This year's price
minus beginning price, that is yesterday's price, today's price minus yesterday's price divided by yesterday's price. So अगर आप रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? today's price, तो मतलब आज का एंडिंग प्राइस माइनस यस्टरडेज एंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय yesterday's price, yesterday's price. ठीक है, तो this is our formula we are using this time. Today's price minus yesterday's price, yesterday's price divided by yesterday's price. और यहाँ पे you will not forget to have a bracket, right? So you can have a bracket. आप सब समझ रहे हो मेरे को भी? अभी you are getting? Yes, हमने ma'am. हमने क्या फाइंड किया? ये एक मंथ का रिटर्न हमने फाइंड किया. That means if you have invested into Reliance Industry into September 10 and if you have sold it into the October, एक मंथ का आपको 11% रिटर्न मिला होगा. That is one return, right? अभी आपने वो 10 साल के लिए रखा होता, then you would have got how much? तो मैं उसको सिर्फ ड्रैग कर रही हूँ. That will take formula अपने आप. तो till that end you can drag it. So इसका मतलब क्या हुआ? Today's price minus yesterday's price, that is today's, that is September 20, yesterday, that is the last period price divided by last previous price, then I would have got 6%. मतलब ये मेरा मंथली रिटर्न हो गया हर एक मंथ के लिए. तो मेरे को जुलाई 19 में रिटर्न वाज -17, तब प्राइस घटा था. Right, January 19 में I would have earned 9% return और August 18 में I would have earned 5% return. Now I will find the average return, उसको बोलते हैं mean return और इसको बोलते हैं, आप बोलोगे मंथली एवरेज रिटर्न इस कंपनी ने कितना दिया था. So यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज की, इज इक्वल टू एवरेज इनटू ब्रैकेट क्या, ये पूरा एरे, रिटर्न का जो भी एरे हमने कैलकुलेट किया अभी उसका पूरा एरे सिलेक्ट करके यू आर एंटरिंग इट एंड आई विल कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज. मतलब देखिए 10 साल में कितना रिटर्न अर्न किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ 1.18%. ये क्या है? 10 साल का मंथली एवरेज. कभी आपने 21% भी किया है, कभी आपने 1% भी किया है, कभी 32% भी अर्न किया है, बट the very previous year you have lost 16%, right? So here 2%, 7%. So all in average last 10 years में Reliance ने सिर्फ 1.18% रिटर्न दिया है, overall average return. So अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, सपोज चलो 100 नहीं 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते 10 साल के लिए, अभी आपकी वैल्यू हो चुकी होती अभी वैल्यू मस्ट बी 1011 रुपीज, बिकॉज ये 11,000 था, इसका 1%, राइट, एंड यू ऐड बोथ ऑफ दिस, आप इसको ऐड करोगे. तो अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपका कुछ यहाँ पे प्राइस हुआ होता 1011 रुपए. अब आपको लगेगा कि इतना कम, बट यस इट इज सो लेस. और आपको देखना है हमने उस पर कितना रिस्क बेयर किया था. तो रिस्क यू कैन कैलकुलेट थ्रू कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और प्लीज अवॉइड द स्पेलिंग, देयर मस्ट बी स्पेलिंग मिस्टेक. अच्छा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में? कुछ आइडिया है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी फॉर्मूला से यूज होता है? यू हैव एनी आइडिया? एनी आइडिया how we calculate variance and standard deviation into Excel? I'm waiting for your answer. Otherwise, I'll explain you. Do you know how to calculate variance in this thing? Standardize. No, mate. Right guess, but थोड़ा सा गलत है. Anybody else? You know how to calculate variance and standard deviation in Excel? Let me tell you. C is equal to सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखो या नोट ले लो. VAR, सिंपल VAR, ब्रैकेट ओपन, कुछ नहीं, सिर्फ VAR, वेरिएंस का पहले 3 अक्षर, वेरिएंस करके आप पूरा एरे सिलेक्ट कर दो, ब्रैकेट ओपन करना है, इज इक्वल टू
वेरायंस में आप लिखोगे VAR, ओपन द ब्रैकेट एंड सिलेक्ट द होल एरे. कौन सा एरे? रिटर्न वाला, जहां पे आपको रिटर्न मिला था. ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला दिख रहा होगा. इज इक्वल टू var, ओपन द ब्रैकेट, सिलेक्ट द होल एरे. आपके जो भी 120 रिजल्ट है उसको आप सिलेक्ट करोगे. Then you close the bracket and press the enter, and your variance, let us convert them into percentage. 1% variance, 92% वेरायंस, तो उसका रिस्क भी कम था, राइट? इसका मतलब. और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं अभी. स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरह यू कैन कैलकुलेट. आई टेल यू हाउ. पहले हम वी विल कंप्लीट दिस फॉर्मूला वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? सो स्टैंडर्ड डेविएशन हाउ यू विल कैलकुलेट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है STDEV. This is the formula STDEV. If you want to note, please note. और कुछ नहीं, STDV P भी होता है, S भी है, STD भी है. हमें ये लेना है STDEV into bracket, मतलब bracket open. Again you will select the whole series, bracket close. So here you can see the whole formula is equal to STDEV, and the select the range and click the enter. And आपका standard deviation is what? Standard deviation is 10%. चलो इसका स्क्वायर रूट. और दूसरी तरह से आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट की फॉर्मूला है SQRT, square root of variance. Close the bracket, put the enter, and you must be getting the same answer. See, if I don't take it a percent, the answer is same. Right? Can you see? The answer is same. Both the answers are same. So this is how we calculate standard deviation, variance and मीन रिटर्न. इसका मतलब है हमको कितना स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हमने किया, हमने 10% रिस्क लिया टू अर्न 1% रिटर्न. नॉट एट ऑल गुड, right? So this is the return, variance and standard deviation of the Reliance Industries, right? For 10 years. अभी आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है? Any question into this? No, ma'am. Okay, so now what you will have to do is, all of you will have to choose your one company, right? You will have to choose one company, and then what you will have to do is, you will have to download the data for last 10 years, monthly data, the way I did, and आपको उसका रिटर्न फाइंड करना है. देन यू हैव टू फाइंड मीन रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. ये एक्सेल शीट करके आप मेरे को आज ही दोगे, हो सकता है? कैन वी डू दैट? Yes, ma'am. है ना? Okay, it is easy, Yes, है ma'am. ना? और choose a company which you know which is recently performing good, right? So आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे कि अभी आप देखोगे कि आज की कंपनी कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है, एंड यू चूज दैट कंपनी. अच्छा, कंपनी सबकी सेम ना हो जाए, इसके लिए हेली कैन यू हेल्प मी? सब 8 लोग हैं, आपको कंपनी का नाम दे दे तो चलेगा? कैन यू डू दैट? और मीत इफ कैन टेक द लीड? Yes, ma'am. है ना? तो सब लोग हेली को अपनी कंपनी का नाम दे दोगे. यू विल और हेली यू विल टेक केयर कि किसी का भी कोई भी कंपनी 2 बार ना हो, ठीक है? सो आप Okay, ma'am. और इट्स फाइन इफ यू आर सबमिटिंग दिस टू मी ऑन फ्राइडे. इट्स फाइन. आप आज सबमिट नहीं करके फ्राइडे कर रहे हो, चलेगा, ठीक है? तो आप अपनी कंपनी चूज कर लीजिए, एंड देन यू कैन identify how to calculate the return, risk and everything. Okay, and I have 10 minutes. In the 10 minutes, I just wanted to share with you all this thing that चलो अपना एक बार सेकेंड मॉड्यूल वापस देख लेते हैं, तो मेरे को शांति हो जाए कि आपको कुछ उसमें क्वेरी नहीं है. मॉड्यूल 2 SAPM, IAPM. So we had started our module with, I'm giving you a recap. हाँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दो वापस. So we have started with risk. Risk refer to the probability of the not earning return as we expected, right? So that can be the return less than the what you expected, right?
There can be business risk, interest risk, market risk. There is two types of risk. One is unique risk and market risk. It is also called the systematic risk and unsystematic risk. Unique risk है, that is unsystematic risk, and it is a company specific and it is diversifiable risk, और आप कंपनी चेंज करके उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो. यूनिक रिस्क भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम है, राइट. हरी आपके हजार नाम जैसा है, उसको स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं, डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं, और अनसिस्टेमेटिक रिस्क भी बोलते हैं, और यूनिक भी कहते हैं, यूनिक रिस्क भी कहते हैं. ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस कि यूनिक रिस्क में कौन कौन सा आएगा. कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कंपनी को रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, कंपनी का एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो कंपनी स्पेसिफिक है. ये रिस्क जो है वो स्पेसिफिक कंपनी ही बेयर करेगी, वो पूरे सिस्टम में नहीं है, पूरी सोसाइटी में नहीं है, सब कंपनी को वो रिस्क नहीं बेयर करना पड़ रहा है. तो इसको बोले कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क एंड इट इज डाइवर्सिफाइबल. आई एम सॉरी, राइट. द सेकेंड इज, सी यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए थे. Market risk is also known as systematic risk and non-diversifiable risk. You cannot change this risk, और ये रिस्क प्लस और माइनस सभी कंपनी को बेयर करना पड़ेगा. ये रिस्क है ग्रोथ रेट का, जीडीपी का है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, पेंडेमिक, नो डिमांड इन द इकोनॉमी. तो ये सब कौन से रिस्क है? सिस्टेमेटिक है, उसको नॉन डाइवर्सिफाइबल और मार्केट रिस्क भी बोलते हैं. ठीक है. अभी हमने सीखा कि हम रिस्क और रिटर्न को कैसे मेजर करेंगे. तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड 4 इंपॉर्टेंट थिंग: मेजरिंग हिस्टोरिकल रिस्क एंड रिटर्न, एंड मेजरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न. राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, मेजरिंग हिस्टोरिकल रिटर्न. राइट. तो हिस्टोरिकल रिटर्न हम 6 तरीके से, 6 चीजें हैं जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक तो टोटल रिटर्न, जो कि है मीन रिटर्न, सिंपल वाला. देन रिटर्न रिलेटिव, देन CWI, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन, एंड रियल रिटर्न. आई गेस हमने रियल रिटर्न का फॉर्मूला नहीं देखा था, तो दैट वी विल सी टुडे. समझते हैं कि हिस्टोरिकल रिटर्न में 6 पैरामीटर्स कौन कौन से. फर्स्ट, टोटल रिटर्न. सेम थिंग जो हमने अभी किया, राइट. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, और इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हैं, राइट. दैट क्वेश्चन वाज देयर इनटू योर मिड सेमेस्टर. HPR का फुल फॉर्म क्या है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न. उसको कैसे करते हैं हम? एनुअल इनकम और C यानी कि कैश डिविडेंड प्लस एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस. और अगर हम एक्सेल में कर रहे हैं तो हाउ वी विल डू इट? today's price minus yesterday's price divided by yesterday's price, right? So that is how you calculate total return. Now this is an example has been given to you, right? So dividend is 7 plus 115 minus 100. So uska ye humne kiya tha, so I'm not repeating it, right? 22% wala sum we had. Then second was return relative. Return relative में क्या है? आप beginning price से calculate नहीं करते हो, सिर्फ ending price divided by beginning price. You can do that as well, right? So ending price divided by the beginning price. C आप add कर दोगे, right? So इससे आपको क्या, और उसको में आप -1 करोगे, right? देखो सेम एग्जाम्पल पे आप कर रहे हो. अब 1.22 आंसर आ रहा है, you will do -1. Your answer will be the same as 22 here, 0.22, and you will deduct 1 here. It will be the same 0.22. So आप रिटर्न रिलेटिव कब कैलकुलेट करोगे? जब आपको बोला गया है स्पेसिफिकली कि कैलकुलेट रिटर्न रिलेटिव. आपको एग्जाम में क्लियरली पूछा जाएगा कि आप हिस्टोरिकल रिटर्न कैलकुलेट करो, तो आप हिस्टोरिकल रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो हमने पहले में देखा. ठीक है. और इफ यू हैव बीन आस्क्ड दैट कैलकुलेट रिटर्न रिलेटिव, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है. एंड देन CWR, आपको ऐसा भी पूछा, मैंने असाइनमेंट में क्लियरली लिखा है कि कैलकुलेट CWI, क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स ऑफ द सेम. तो आप कैसे करोगे वो? तो उसका भी हमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, राइट. 1 प्लस रिटर्न दिस WI, दैट इज वेट, वो 100 या 1 आप ले सकते हो. देन इनटू ब्रैकेट 1 प्लस रिटर्न 1 इनटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिटर्न 2 टिल 1 प्लस रिटर्न n. अरिथमेटिक मीन सिंपल, आप
को दिया गया है उसका ऐड करके डिवाइडेड बाय उसके नंबर्स कर दोगे, एंड जियोमेट्रिक मीन में क्या करेंगे हम, 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3, ब्रैकेट ओवर रेज टू 1 अपन कितने भी साल है उतने भी उसकी स्क्वायर रूट, उसका रूट निकालेंगे -1, राइट. So this is we have already understand. अच्छा, this is something new, real return. ठीक है, हमें रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट. नाउ पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको कि रियल रिटर्न है क्या. एनी आइडिया व्हाट इज रियल रिटर्न? एनी आइडिया व्हाट इज रियल रिटर्न? व्हाट इज रियल रिटर्न? Return over and यस, above जिसमें inflation से rate. आप इन्फ्लेशन रेट का जो भी इम्पैक्ट है उसको माइनस करते हो, उसके बाद जो है दैट इज योर रियल रिटर्न, राइट. तो सपोज अभी आपको एफडी जो है वो रिटर्न दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, पेन बेन कुछ नहीं आता क्या? नो प्रॉब्लम. अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अच्छा, कैलकुलेट रियल रिटर्न इफ इन्फ्लेशन रेट इज 7%. इफ यू कैन सी द डी, राइट. चलो, आप कैन यू डू दिस विथ मी? और स्टॉक रिटर्न आप जल्दी से अपना नोटपैड है जो भी है उसमें लिखो. रियल रिटर्न, रिटर्न 1 इज 0.30, रिटर्न 2 इज -20, -12, -0.12, -0.38. अरिथमेटिक मीन, CWI एंड जियोमेट्रिक मीन. देखो ये CWI कैलकुलेट किया है कैसे, 1 इंटू 1.30, बिकॉज ये 30 है तो उसमें ऐड कर दिया है ना, 1.30, 0.80, 0.8, ये हमने किया है. हम इफ यू नीड देन ओनली आई विल डू इट. डू यू वांट मी टू डू इट इन प्रैक्टिकली? यू वांट कि मैं आपको ये प्रैक्टिकली करवाऊं अभी? No, ये आपको ma'am. है ना, दिस इज यू नो. ठीक है, अरिथमेटिक मीन भी किया है, मैं सिर्फ आपको अभी वो रियल रिटर्न वाला करा रही हूँ, रियल रिटर्न. अच्छा, अभी हमें क्या दिया गया है कि रियल रिटर्न इफ इन्फ्लेशन रेट इज 7%. तो देखो यहाँ पे हमारा रिटर्न 19% आ रहा था, है ना. यहाँ पे जाते हैं, दिस इज 19%. अगेन वो रिटर्न में भी आपको 19% है. देखो ये जो है उसका एवरेज आप निकालो, 0.30, -20, -12, +38, +42 एंड +36 डिवाइडेड बाय 6, राइट. तो आपको 0.19 मिलेगा, दैट इज 19%. मतलब आपका नॉमिनल रिटर्न कितना है, 19% है, एंड यू हैव टू फाइंड द रियल रिटर्न. सो कैसे आप करोगे, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1. So that was the formula. So here is the formula. रियल रिटर्न 1 प्लस 0.19, यानी कि 19% जो हमने रिटर्न कैलकुलेट किया था उसको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07, मतलब 7% था, उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 0.07 -1. सो ये हो गया 1.19 डिवाइडेड बाय 1.07 -1. So this will be is equal to 0.1122 और 1122%. इसका मतलब क्या हुआ, आपको रिटर्न 19% मिल रहा है ना. योर रिटर्न इज 19%, पर आपका एक्चुअल रिटर्न तो 11% ही है. क्यों? क्योंकि आपका 7% तो आपका इन्फ्लेशन रेट है. उसका मतलब कि एक साल में आपको 19% रिटर्न मिलेगा, बट दैट पैसे जो सपोज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उस पर आपको 19 रुपीज का रिटर्न मिलेगा. जो वो 19 रुपए मिलेंगे उसकी वैल्यू तब कितनी हो गई होगी, 11 रुपए. क्यों? क्योंकि 7% तो आपका इन्फ्लेशन हो गया. तो आपका एक्चुअल रिटर्न, आपका रियल रिटर्न इज 11%, राइट. So that's what we had discussed. Measuring historical risk, and historical risk we can calculate it two way. So देखियो, measuring historical return आप 6 तरह से, आपको 6 फॉर्मूला थी. कौन सी 6 फॉर्मूला थी? एक्चुअल रिटर्न, रिटर्न रिलेटिव, cumulative wealth index, AM, GM and the real return. तो ये 6 तरह की फॉर्मूला you have to remember. Then into historical risk you have to remember 2 things, variance and standard deviation. So 8 formulas. Let us see variance. Variance में simple है, आपका जो भी actual रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न माइनस आपका आर बार, मतलब RI माइनस आर बार, दैट इज द एवरेज,
ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, तो ये आपका वेरिएंस हो गया. बट जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन. देखो अभी इसका ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बट ऑब्वियस आपको n-1 लेना पड़ेगा, और आपको हर एक क्वेश्चन में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को पूछा होगा. तो वेरिएंस आप कैसे करोगे? सेम वे, आप n-1 से डिवाइड करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मैनेज करता है कि आपका एवरेज से आपकी जो वैल्यू आई है वो कितने से कम है, 5 पॉइंट से, 4 पॉइंट से, 3 पॉइंट से. और वेरिएंस क्या मेजर करता है? वेरिएशन, मीन वैल्यू से आपकी वैल्यू और आपकी वैल्यू बाकी सब वैल्यू से कितनी दूर है. ठीक है, तो दैट इज अ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग इनटू अ क्वेश्चन आल्सो, and the same question has been given to here, and you have to calculate the variance and standard deviation. This is how we calculate variance and standard deviation. हम एक पूरा टेबल बनाते हैं जिसमें फर्स्ट में हम लिखते हैं ईयर, सेकेंड कॉलम में यू राइट रिटर्न, एंड थर्ड कॉलम में यू राइट रिटर्न माइनस मीन होल स्क्वायर. सो रिटर्न 30 माइनस 19 जो भी आया उसका हमने स्क्वायर किया, तो आंसर इज 121. -20 माइनस 19 हो गया -39, -39 का स्क्वायर होता है 1521. -12 माइनस 19 हो गया आपका 29, 32, -32 का स्क्वायर. 38 माइनस 19 इज 19, 19 का स्क्वायर 361. 42 माइनस 19 मतलब हो गया आपका 23, 23 का स्क्वायर. 36 माइनस 19 हो गया 17, 17 का स्क्वायर. और इस सब का आपने एडिशन कर दिया. नाउ दिस इज एडिशन, दैट यू गॉट इज ri माइनस r बार ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर. अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? वेरिएंस के लिए यू डिवाइड इट बाय n-1. तो अभी 3782 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप, तो आपका आंसर होना चाहिए 7.564. एंड जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे योर आंसर मस्ट बी 27.50. अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली उसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, और आप साइंटिफिक अदरवाइज यूज कर सकते हो. ठीक है, देन हमने एक्सेल एप्लीकेशन भी सीखा. एक्सेल एप्लीकेशन में आप कैसे करोगे? इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू वेरिएंस एंड इज इक्वल टू STDEV. दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड जस्ट नाउ. ठीक है, एंड देन एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम क्या करते थे? वी मल्टीप्लाई द probability with its return and expected risk. तो that is already done. और ये सारे सम मैंने आपको दिया है. आपको ये 29 तक देखना है. ये है कोवेरिएंस की चीजें. वो कोवेरिएंस और कोरिलेशन आई विल टीच यू इन द लेटर ऑन. और अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स. हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स करेंगे, एंड आपका जो भी और डाउट है सेकेंड मॉड्यूल में वो करेंगे. तो अभी तक हमने 6 + 2 + 2 मतलब 10 फॉर्मूला सीखे हैं यहाँ तक. ठीक है, कोरिलेशन कोवेरिएंस हम ओमिट कर रहे हैं. हमने अभी तक एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न के 10 फॉर्मूला सीखे हैं. कौन से 10 फॉर्मूलाज? आई विल टेल यू. 6 टू मेजर हिस्टोरिकल रिटर्न, 2 to measure historical risk, 1 to measure expected return, and 1 to measure expected risk. So इसके 6 फॉर्मूले, इसके 2, इसका 1, इसका 1. तो 6 + 2 + 8 + 1 9 + 1 10. So ये 10 फॉर्मूला का आप एक चार्ट बनाओगे. आप लिखोगे कि रिस्क एंड रिटर्न, उसके नीचे फर्स्ट हिस्टोरिकल रिस्क एंड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न. हिस्टोरिकल रिस्क के नीचे हिस्टोरिकल रिस्क रिटर्न के नीचे हिस्टोरिकल रिस्क, 2 चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. हिस्टोरिकल रिटर्न के नीचे 6 चीजें, एक्सपेक्टेड रिटर्न के नीचे एक फॉर्मूला, और एक्सपेक्टेड रिस्क के नीचे एक फॉर्मूला. ऐसे करके आप 10 फॉर्मूला वाला चार्ट बनाओगे, और वो चार्ट आप मेरे को क्लिक करके यू विल सेंड मी अ पिक्चर. आर वी डन? Any confusion? No, ma'am. Right, and with the help of those formula you can calculate the all assignment number 1 and 2. I would expect that you complete it by Friday, and ये assignment 3 जो मैंने आज दिया, जो आप हेली के साथ आपका लिस्ट आउट करा रहे हो, that also you will complete by
फ्राइडे। आई अंडरस्टैंड आपको बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया इस 2 दिन में, बट यू विल हैव टू कैरी इट बिकॉज मैं आई जस्ट वांट टू क्लोज द चैप्टर 2। हमारा जो मॉड्यूल 2 है वो आपका परफेक्ट रेडी हो, दैट्स वाई। मॉड्यूल 3 में फिर आपको कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो मॉड्यूल 3 में आपको